Hello friends, I am Jagdish Trivedi welcoming to you Kanbha Gurukul YouTube channel. Good morning everyone. Regularly I am meet online and day by day lesson start the poem 1, lesson 2 and today now new lesson start. Lesson third name is lesson third part 1 name is Param Nidhanam Kah. Param Nidhanam Kah. Param means great. Nidhanam meaning for treasure. Kah means what is. A full translation is what is great, what is the great treasure. उत्तम खजाना कौन सा है. Education and scholar person always great. Education and scholar person is always great. यानी जिनके पास एजुकेशन है और जो विद्वान स्कॉलर पर्सन विद्वान व्यक्ति है वही उत्तम है. इन दिस प्रेजेंट स्टोरी ये डिस्कस and dialogue type stories. A dialogue and convocation to the two parts. One part name is the King Bhoj and second young one man, yani younger man's, young man's. Introduction and one such story and dialogue from is presented here focusing on Bhoj. In this dialogue between Raja Bhoj and young scholar person in has been attempted to emphasize strength of one thing over the other. Raja Bhoj and young scholar person. One thing as the conversation progresses, there is total halt when it comes to the point of contentment. That is, this story lies stress on the importance of contentment. You know the king of Bhoj. The king Bhoj in the 11th century in Malwa, a Kanauj, present and Kanauj, the city and state is Madhya Pradesh state of present, living on Dhara Nagar. The fame that Raja Bhoj attained at that time is still alive today. In additions to this, Sanskrit poets of different periods have accepted Raja Bhoj as the character to present their ideas. Raja Bhoj कौन नहीं जानता.
राजा भोज को सब लोग जानते हैं, क्योंकि राजा भोज ऑलवेज ये हमेश के लिए राजा भोज स्कॉलर पर्सन यानी विद्वान व्यक्तियों का स्वागत करते थे। राजा भोज ऑलवेज वेलकमिंग इन स्कॉलर पर्सन्स इन योर कल्टयार्ड। ये राजा भोज एंड स्कॉलर पर्सन discussing and conversation in this lesson, and while reading this lesson it is important to pay attention to the concord between the case of the door and the verb forms। ई पार्ट के अंदर वर्ब एंड केस। तो लेसन नंबर ग्रामर लेसन नंबर 2, हाउ मैनी केस यू स्टडीड इन लेसन नंबर 2? द नेम इज केस एंड केस सर्कल्स। तो हाउ मैनी केसेस? 8 टाइप ऑफ द केसेस, 1 to 7 and 8। 1 is nominative, 2nd is accusative, 3rd is इंस्ट्रूमेंटल। इस प्रकार 8 केस लेसन नंबर 2 में आता है। एंड वर्ब, तो वर्ब डिस्कसिंग टाइम, द वर्ब इज टेंस। टेंस mainly 3 tense is the most important: present, past and future tense। and 2 type of the आदेश। तो यहाँ only 1 a potential आदेश, आज्ञार्थ एंड विध्यर्थ आदेश। स्टार्ट द स्टोरी इज कन्वर्सेशन टू राजा भोज एंड स्कॉलर पर्सन। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक and page number 9. First, I read one by one sentence, and second time translator after translation the one by one ये hard glossary work, hard glossary meaning, word meaning। तो first read the start the sentence first। भोज नाम नृपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय च आसीत। डिजॉल्व द संधि प्रजाप्रिय च आसीत। भोज नाम नृपति, ए किंग नेम्ड भोज। नृपति किंग। इन सिनोनियम वर्ड्स फॉर द नृपति: नरपति, नामदेव, नरदेव, भूपति। ऑलवेज ऐसे सिनोनियम वर्ड्स नृपति, भूपति, नरदेव, नामदेव। तो भोज नाम नृपति, किंग नेम्ड भोज वॉज द लवर ऑफ कलाप्रिय, लवर ऑफ लर्निंग, ए लवर फॉर लर्निंग, कलाप्रिय। प्रजाप्रिय, लवर फॉर फाइन आर्ट्स एंड डिवोटेड टू सब्जेक्ट। ए वर्ड फॉर आसित, ए रूप फॉर अस धातु रूप। अस स्पेशल यूज ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। पर प्रेजेंट टेंस ये रूपावली इज अस्मि स्वः स्मः, असि स्तः स्तः, अस्ति स्तः सन्ति। एंड अस्ति मीन्स is present tense, and us past tense meaning for the आशित। अर्थ है इसका आशित। आशित मीन्स वॉच, इज पास्ट टेंस। तो फुल लाइन
Translation: A king named Bhoj was the lover of learning, lover of fine arts, and devoted to subject. अतः तस्य राज्यसभायां दूरदेशात् अनेक विद्या विशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म. ए स्पेशल यूज ऑफ स्म वर्ड्स. आगे जब उनकी चर्चा करेंगे तब स्म शब्द की चर्चा करेंगे. स्पेशल यूज ऑफ द स्म इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत भाषा के अंदर खूब महत्व का कोई चीज़ है तो स्म का प्रयोग. ये वर्ड्स, ये सेंटेंस गिव इन प्रेजेंट टेंस, बट योर ट्रांसलेशन एंड मीनिंग फॉर द पास्ट टेंस. प्रेजेंट में वर्ड सेंटेंस दिया होता है पर उनका अर्थ पास्ट में ही होता है. इज वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द स्म इन द संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत लैंग्वेज के अंदर स्पेशल यूज है क्योंकि ये यूज में वर्ब जो है ओनली वर्ब चेंज टू द पास्ट टेंस टू द प्रेजेंट टेंस, बट इज मीनिंग फॉर द पास्ट. तो अतः तस्य राज्यसभायां सो राज्यसभा विद्या विशारदा पंडिता. सो मैनी स्कॉलर एक्सपर्ट इन लॉरियस used to come to his royal assembly from far off countries. जो ये मीनिंग फॉर सो मैनी स्कॉलर एक्सपर्ट इन लॉरियस यूज्ड टू कम टू हिज रॉयल कोर्ट एंड रॉयल असेंबली फ्रॉम द फार ऑफ कंट्रीज. दूर देश से आते थे और यहाँ पर वो क्या करते थे, आकर रॉयल असेंबली में दूर देश से आकर यहाँ पर राजा भोज के सामने आकर उनकी विद्वत्ता दिखाते थे और राजा भोज उनको इनकी विद्वत्ता को देखकर इनको बहुत सारा इनाम देते थे. तो स्टार्ट द स्टोरी इज कन्वर्सेशन एंड डायलॉग टाइप ऑफ द स्टोरी एंड कन्वर्सेशन ऑफ द किंग भोज एंड स्कॉलर पर्सन. एकदा भोज प्रासादस्य गवाक्षो उपविष्टः आसीतः. प्रासादस्य, ये वर्ड प्रसाद इज द डिफरेंट मीनिंग ऑफ प्रसाद एंड प्रासाद. ये फर्स्ट प्रसाद एंड प्रासाद. ये प्रसाद मीन्स फेवर एंड प्रासाद मीन्स अ रॉयल असेंबली एंड रॉयल कोर्ट. एकदा भोज प्रासादस्य गवाक्षो उपविष्ट आसीत. एक बार राजा भोज उनके रॉयल कोर्ट के राउंड द असेंबली, ये रॉयल कोर्ट पैलेस या रॉयल कोर्ट. एकदा भोज प्रासादस्य गवाक्ष उपविष्ट आसीत. वंस भोज वॉज सिटेड इन द round window of the place. Round window place. See the pictures. And King Bhoj seated on the round window of the place. He sees सहमार्गे एक नव आगुंतुकम. Dissolve the sandhi. नव आगुंतुकम अनभिघ्नः
युवकम पश्यति। अनभिघ्नः इन अनएजुकेटेड पीपल, अनभिघ्न यानी जिसे हम कहते हैं इग्नोरेंट, अनभिघ्न, इग्नोरेंट पर्सन। स मार्गे एक नव आगंतुकम अनभिघ्नः युवकम पश्यति। सह मार्गे, उसने उस मार्ग पर एक नया बिन पहचाने आदमी को आते देखा। ट्रांसलेशन इन द इंग्लिश, ही सीज अ न्यूली अराइव्ड ignorant young man in the street. तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रासादे आहूयति। तस्य परिचयं, he calls him into the palace in order to know who he is. आप कौन हो, उनके परिचय के लिए। सह तम प्रासादे आहूयति ततस्तयो मध्ये एव वार्तालापम संजात। Then between them the conversations took place in this way. Start the story, present story in this young man and King Bhoj, scholar person, young man, and discussing the IM has been attempted to FMCC state of one thing over the other. मैं आपसे ज़्यादा ज्ञान में हूँ, आप मेरे से कम ज्ञान में हो। ये डिस्कसिंग एंड कन्वर्सेशन स्टार्ट। लास्ट टाइम start the conversation to the King Bhoj and scholar person. Part 1 is over today. Good day, goodbye. Jai Swaminarayan.